Hello everyone, welcome to this new video and welcome to the new channel of Anjan Kalash IAS by Arpita Prakash. In the previous two videos, I have given you the brief introduction on going ahead with this channel. In the second video, we did discuss about a lot many things related to the editorial discussions. That was kind of an A to Z of editorial discussion. और मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात कही थी कि यहाँ से हम एक नई जर्नी शुरू करेंगे वेर we would get answers to all the questions that are required related to covering editorials from the newspapers. It is not just about doing it for the sake of formality, not just for any pseudo satisfaction that, okay, we have covered an editorial. No, there are so many things that would be answered here. We would be doing the static, we would be brainstorming everything that is required, and that is why it was named as A to Z. So, from scratch to the end, it is what we cover here. How to cover the editorials from the newspaper, what could be the prerequisite, what could be the first reading, second reading, key mistakes to avoid, and also certain recommendations is what has been done in the previous video, the link of which is given in the description. Please do check the video and share your feedback. Here we start a discussion with the first editorial because my purpose is not just to guide you that how to do something, but also to demonstrate you that if I have told you that, okay, these are the ways or steps that you can follow, how do you actually apply it in the case of a particular editorial? So today, one piece that we are taking is from the Hindu dated January 15, 2024. I have already discussed about it in the previous video that this is the article that we would be doing next. So this article, which is given here as we have already seen, what I would be doing, I would be taking those steps that I have discussed with you of the first reading and the second reading, and then showing you that on the basis of this how a piece can be covered from the newspaper. Initially, of course, when you are doing as a beginner, or even let's say you know the subject but newspaper reading is something new to you, it will take time. You need to be prepared for that. But as and when you are grasping the syllabus more, you are understanding more about the previous year questions, you are understanding more about your static concepts, this time will drastically reduce. Okay, so this much trust you will have to keep on yourself and on the process. Very quickly summarizing what we studied to be done in the first reading: understanding the core theme, mapping the syllabus, understanding the structure of the editorial, that which paragraph says what, highlighting the important pointers, only the important pointers. Then in the second reading, very quickly framing the heading and the subheading of what is given, brainstorming on the basis of syllabus, PYQ, and any other thing that, okay, what else could be added to the topic, and then noting only the important pointers, right? So this was the structure that I have given you. It might seem very lengthy to you in the beginning, but trust me, just stay with me in the this particular video and you will see how miraculously it can be done. So this is where I have summarized it so that it helps you to stick to the steps of the first reading and of the second reading. Okay, gradually over a period of time you will not even require these steps, you will quickly already understand. It's just for the beginners to do the process step by step. Okay, so it's not something hard and fast that needs to be followed across your preparation. When we say understand the core theme, so when we do the first reading of the editorial, after reading we need to understand that, okay, what is the core theme of the editorial. So अब सबसे पहले हम इस एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार रफ रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कोर थीम क्या है. ऑल्दो आई हैव गिवन इट टू यू, बट लेट अस मेक सेंस बाय डूइंग इट. उसका एक रीज़न ये भी है दैट व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर पीस, व्हेन यू जस्ट गो विद द हेडिंग, you might feel that, okay, this is something that the title gives you the idea about. Okay, and at times, yes, it's true as well, but it's not always important that whatever is given in that heading is the only thing that is being discussed. Okay, अब जैसे for example, if you read this heading, a speaker's flawed move to determine the real faction. ठीक है, आपने अगर इसको ट्रांसलेट कर लिया, if you are able to make sense only of the heading, you will understand that the article talks something about the speaker and the move taken by the speaker is being commented by the author as a flawed move. ठीक है, कि उसमें कुछ गलतियाँ थी, and the speaker was actually taking that move to do what? To determine the real faction. Faction is basically a group. ठीक है,
तो इतना तो हमें हेडिंग से समझ आ रहा है, बट बेसिकली दैट मीन्स दैट by the heading you could figure out that okay, this article is talking something about the speaker. Lekin when you will do it in totality, when you read the whole article, you will make sense that it is not just talking about the role of speaker. There is some other thing also which is being covered here, and that is why the speaker at time the heading at times could only give you partial information. ठीक है, अब जल्दी से एक बार फर्स्ट रीडिंग करते हैं. लेट अस जस्ट डू द फर्स्ट रीडिंग वंस, ओनली द फर्स्ट रीडिंग, बिल्कुल प्लेन रीडिंग, कुछ ज़्यादा नहीं करना है. एक रफ क्रक्स समझना है और द कोर थीम समझना है कि क्या ये बात कर रहे हैं. सो दे टॉक अबाउट द स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली. ठीक है, एक स्टेट की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है. दिस इज हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकसभा स्पीकर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर. इतना तो क्लियर हो गया फर्स्टली. सो दैट गिव्स यू पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आपको समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसकी बात हो रही है. ठीक है, या सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर किसके ऑफिसर की बात हो रही है. द ऑफिसर बीइंग डिस्कस्ड हियर इज द स्पीकर, एज यू कैन सी, right? And the state being discussed here is Maharashtra. So the speaker of the Maharashtra assembly was required to decide. That is why there has been a decision taken by the speaker, so a move taken by the speaker. Now what the speaker was required to decide that whether the breakaway group of Shiv Sena MLAs, ठीक है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट पार्टी, आपको पता है, मतलब इस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में इनके जो MLAs हैं उन्होंने जो ब्रेक अवे करा, तोड़ा. ठीक है, किसके लीडरशिप के अंदर में, एकनाथ शिंदे. अभी हम पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ पे नहीं जा रहे हैं कि स्पीकर का नाम क्या था या किसके अंडर में तोड़ा या सीएम का नाम क्या था. वी आर जस्ट सीइंग द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल. हमें जब स्पेशली पॉलिटिकल न्यूज़ रहते हैं, इफ़ इट्स कोर पॉलिटिकल दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड फॉर यूपीएससी, बट इफ दैट कैन बी फिटेड इन टू द सिलेबस perspective from the examination perspective, then we use only the required information. ठीक है, तो चलो. सो एकनाथ शिंदे जी के लीडरशिप के अंडर में जो इनके MLAs ने ब्रेक अवे कर लिया, क्या उन्होंने, बिकॉज इट वॉज द क्वेश्चन दैट द स्पीकर हैड टू फाइंड आउट, वर दोज मेंबर्स voluntarily giving up the membership of the party and they later voted against the whip issued by the party. ठीक है, पार्टी शिवसेना. तो क्या अगर उन्होंने ऐसा किया है, इफ़ दे हैव voluntarily given up the membership, so do they qualify, do they are they like eligible for disqualification? ये क्वेश्चन है, ये मेन इशू है जो कि ये आर्टिकल डिस्कस उस पर कर रहा है. ओके, मूविंग ऑन, देन इट टॉक्स अबाउट दैट व्हाट इज एक्चुअली डिफेक्शन. ये देखो यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है, दैट व्हाट इज ट्रीटेड एज डिफेक्शन. सो द आर्टिकल सेज, और द ऑथर सेज बेसिकली, दैट वॉलेंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द ओरिजिनल पार्टी. जो भी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है उसके मेंबरशिप को आप अगर अपनी मर्जी से हटा रहे हो, या फिर यू आर वोटिंग अगेंस्ट द विप ऑफ द पार्टी. नाउ व्हाट इज विप इज अ स्टैटिक थिंग दैट नीड्स टू बी डन. इट इज़ एट टाइम्स यूज्ड फॉर अ पर्सन ऑल्सो और फॉर अ प्रोसेस ऑल्सो. ठीक है, विप इशू किया जाता है पार्टी से. बेसिकली आप जिस भी पार्टी को बिलोंग करते हो, यू आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दैट पार्टी. ठीक है, तो या तो आपने उस पार्टी की मेंबरशिप अपने मर्जी से दे दी वॉलेंटरली, और यू हैव वोटेड अगेंस्ट द विप ऑफ द पार्टी. ईदर वे दैट इज ट्रीटेड एज डिफेक्शन. आई कम मोर टू इट. ठीक है, दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज गिवन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट इन द आर्टिकल. अभी इसमें बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है, मैं आपको कुछ दूसरे सोर्सेज भी दिखाऊंगी जो कि ऑफिशियल सोर्सेज हैं. दिस इज सीधे पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रेफरेंस से लिया गया है. ठीक है, बहुत सारे, ये लक्ष्मीकांत का क्लिप है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो कि इस टॉपिक्स पे बात कर रहा है. सो यू जस्ट नीड टू बी स्टेइंग विथ मी थ्रू आउट द लेक्चर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द थिंग्स. अभी वॉट वी आर डूइंग इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग वॉट द आर्टिकल इज डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट. ठीक है, सो एक तो यहाँ पे चीज़ आंसर हो रही है, हमें समझ में आ रहा है कि डिफेक्शन क्या है, ये इन्होंने बताया. ठीक है, सेकेंड चीज़, दैट दोज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर हु डू ईदर ऑफ दीज थिंग्स. सो ईदर ऑफ दीज थिंग्स मीन्स either voluntarily giving up the membership or voting against the whip of the party जिसके वो member थे. ठीक है, they are liable to be disqualified under the anti-defection law contained in the 10th schedule of the constitution. So this much what the article is telling. ठीक है, अब यहाँ पे आपने बहुत सारी नई चीज़ें समझी. if you are a beginner, so I am assuming that you are a beginner, so that we can take things from zero. So एक हमने समझा डिफेक्शन एक टर्म को लेकर के.
दूसरी चीज़ हमने कुछ कंडीशंस रिलेटेड टू डिफेक्शन समझी. थर्ड चीज़ वी अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन, राइट. उस पर हम बाद में डिटेल में आएंगे. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ and which is given in 10th schedule of the constitution. We also read about the term whip here. So many keywords and everything revolving around the static concepts हमने देखा यहाँ पे. ठीक है. अब further the author says that now it is immaterial that Eknath Shinde later became the CM or not. कोई पर्सन अगर बाद में CM बन भी जाए या फिर जो उनके लेजिस्लेचर्स थे उनकी मेजॉरिटी ने दे जॉइन द शिंडे ग्रुप या फिर ओरिजिनल शिव सेना पार्टी जो है वो माइनॉरिटी बन गई क्या. बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि व्हाट्स एवर इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मूव मतलब कि वॉलेंटरली मेंबरशिप गिव अप कर देना और विप के अगेंस्ट वोट करना. So after the move of the members, whatsoever is the consequence, these facts are now irrelevant. This is what the author is saying, कि these facts are now irrelevant for the determination of question of disqualification under the 10th schedule. क्योंकि उनका कहना है कि फर्स्ट कंडीशन तो डिस्क्वालिफिकेशन का यहीं पे मीट हो जा रहा है. सो वॉट एवर इज द कॉन्सिक्वेंस नाउ इज ऑफ नो वैल्यू. दिस इज वॉट बेसिकली द फर्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट. इट गिव्स यू द इंट्रोडक्शन टू द मैटर on which the article is written. उसके बारे में एक थोड़ा सा information is next what they have given here. ठीक है, little bit of information on that and then उससे ही related एक छोटा सा conclusion within this paragraph they have given you. Next you would see that 3 headings are covered here. ठीक है, let us understand what they are trying to say. First is an attempt to prevent disqualification. ये heading क्या बात करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक. This is going to talk about what attempt was put or what attempt was used to prevent the disqualification. Now, so ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल शिवसेना पार्टी है उसने एक पिटिशन फाइल करा and they were seeing the or they sought the so they were seeking the basically disqualification of the शिंदे ग्रुप. कि ओरिजिनल शिवसेना पार्टी से शिंदे ग्रुप मतलब शिंदे जी के अंदर में कुछ लोग जो है वो निकल के गए तो अब उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए. Now this petition was filed before the speaker. क्यों होता है ये आपको स्टैटिक नॉलेज से ही समझ में आएगा. दैट इज़ वाई द टॉपिक आई हैव रिटन इज ऑल्सो दैट रोल ऑफ स्पीकर. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट द टॉपिक टॉकिंग अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th schedule हैज़ टू बी मैंशनड. यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक इवन if the heading does not give you a clear picture about it, right? Second, so the role of speaker comes here कि इस तरह की petition of talking about someone's disqualification, when that was filed before the speaker gets the jurisdiction to decide. अब ये petition अगर speaker के पास गया है तो speaker को ये decide करना है whether the respondent legislatures have defected. कि क्या जिनके बारे में बात हो रही है वो जो legislatures हैं यानी members of legislative assemblies हैं, did they really defect? So again the question comes that what is defection. ये फिर से आ गया ना कि डिफेक्शन क्या होता है. इसीलिए मैं आपको ये वाला क्लिप दिखाऊंगी. वी विल सी ऑफिशियल चीज़ें डिफेक्शन को लेके क्या कही जाती हैं. ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन. ओके, नेक्स्ट. अब स्पीकर के सामने इफ़ सम पिटिशन इज केप्ट द स्पीकर वुड ऑल्सो बी नोइंग सर्टेन फैक्ट्स, राइट? सो व्हेन दीज पीपल वेंट टू द स्पीकर टू आस्क फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द अदर मेंबर्स दे हैड पुट फॉरवर्ड सर्टेन फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर. तो अब उनके सामने जो चीज़ें रखी गई दैट वॉज कि जो रेबल MLAs थे अंडर द लीडरशिप ऑफ एकनाथ शिंदे दे हैड सीक्रेट मीटिंग्स इन अ फार अवे स्टेट. उन्होंने कहीं दूर जाके मीटिंग करी एंड ऑल्सो दे डिड नॉट अटेंड द क्रूशल पार्टी मीटिंग्स. जो पार्टी के लिए मीटिंग्स थी वो उन्होंने अटेंड नहीं करी, कहीं और जाके अपना ग्रुप बनाया, अपनी मीटिंग्स अटेंड करी. द मीटिंग दैट वॉज इवन कॉल्ड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी दैट वॉज नॉट अटेंडेड बाई दीज पीपल एंड दे डिड नॉट गिव एनी रीज़न फॉर इट. ठीक है, this rebellion by the MLAs loyal to Eknath Shinde culminated in the formation of an alliance with the opposition party. कि ये लोग गए, उन्होंने अपनी कोई दूसरे जगह पे मीटिंग करी, ओरिजिनल पार्टी की मीटिंग नहीं अटेंड करी, देन दे फॉर्म्ड अलायंस विद द ऑपोजिशन एंड देन उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया. ये एक सारा पिटिशन में बात रखी गई है इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर. ठीक है, नाउ द स्पीकर वॉज कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड. अब ये डिसीजन स्पीकर को लेना था कि वेदर दिस एक्शन of the people, MLAs, the person and the MLAs could be treated as voluntarily giving up membership. कि इस पूरे इंसिडेंट को समझने के बाद क्या स्पीकर ये बोलेंगे कि हाँ इन लोगों ने वॉलेंटरली मेंबरशिप को गिव अप किया. ठीक है,
And if voluntarily membership is given up, then of course they will go for disqualification. So basically here the role of the speaker comes in, that what the speaker has to decide. Speaker ने finally क्या decide करा, उस पे ये बात हो रही है. Now, author also tells you that whether a legislative member has voluntarily given up the membership is to be determined on the basis of the facts and circumstances of each case. Like you cannot go एक general case study को लेके कि it is going to be universally applicable. This is what they are telling कि it has to be dependent on individual cases basis. ठीक है. Then what could be the further base of it? उसको डिसाइड करने के लिए कोई एक बेस की मदद लेनी पड़ेगी. वो बेस क्या है? दैट सुप्रीम कोर्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन्स हैज़ एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ दिस टर्म. ठीक है. अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 केस, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट व्हेन अ मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ रूलिंग पार्टी, जो पार्टी ऑलरेडी रूल कर रही है, अगर उसके मेंबर्स they join hand with the opposition party and they meet the governor along with the opposition members, and if then they try to form alternative government, मतलब इन्होंने अगर पूरा प्रोसेस फॉलो किया है कि फर्स्टली वो दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं हाथ, फिर वो गवर्नर के पास जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं दैट वी आर इंटेंडिंग टू फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, तब जाके हम कह सकते हैं कि दे आर वॉलेंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप. है ना. क्यों? क्योंकि वो क्लियरली कह रहे हैं दैट वी वांट टू फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. ठीक है. अब इस केस को यहाँ अप्लाई करते हैं, दिस एग्जाम्पल, जहाँ पे इफ़ यू लुक एट द कॉन्डक्ट ऑफ द शिंदे ग्रुप इन द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, इट वेरी क्लियरली बिकम्स दैट दे हैव वॉलेंटरली गिवन अप द मेंबरशिप, क्योंकि उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी के साथ हाथ मिला लिया. ठीक है. So overall then the consequences should be disqualification. This is what the author is putting forward. अब उनका लेकिन ये भी कहना है that the speaker should have decided accordingly. But speaker ने इतने बड़े judgment को बिल्कुल avoid कर दिया and the speaker shaved the Shinde group from disqualification. So therefore the author is claiming that the speaker's judgment in this case is a deeply flawed one. कि इन्होंने जो बोला है वो सही नहीं है. Now the author also tells you that what actually is the case given in the 10th schedule. ठीक है. अब इन्होंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दिया. अभी तक तो ये केस समझा रहे थे. So they say, the author says that originally under the 10th schedule a legislature could avoid disqualification on 2 grounds. ठीक है. जैसे यहाँ पर तो स्पीकर ने करवा दिया according to the author, बट उनका कहना है कि इन द ओरिजिनल 10th शेड्यूल 2 ऐसे तरीके थे जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन से वो बच सकते हैं. पहला, इफ़ देयर इज़ अ स्प्लिट इन द पार्टी. सो अगर इन अ पार्टी 1/3 ऑफ द लेजिस्लेचर डिसाइडेड टू, ये ओरिजिनल केस है, ये बाद में चेंज हो गया है. ठीक है. ये पहले ऐसा था कि इफ़ 1/3 ऑफ द मेंबर्स इन द पार्टी डिसाइडेड टू स्प्लिट, वो अगर चाहते हैं कि हम स्प्लिट होना चाहते हैं एंड ब्रेक द पार्टी करना चाहते हैं. सेकेंड, अगर वो लोग मर्ज करना चाहते हैं. सो लेजिस्लेचर्स की जो बात हो रही है सेकेंड केस में, कि अगर वो लोग मर्ज करना चाहते हैं. सो एंड 2/3, नॉट लेस देन 2/3, सो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पीपल मर्ज, गो फॉर द मर्जर एंड अग्री फॉर द मर्जर एंड देन वॉक आउट ऑफ द पार्टी. ठीक है. तो 2 केसेस थे, एक स्प्लिट के और एक मर्जर के, जहाँ पर कि डिस्क्वालिफिकेशन फिर डिस्क्वालिफिकेशन से बचा जा सकता था. सो इन बोथ द केसेस द आउटगोइंग लेजिस्लेचर्स कुड क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन. बट नाउ दिस स्प्लिट प्रोविजन, ये जो ओरिजिनली दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वाज लेटर रिमूव्ड. सो दैट वाज ओमिटेड थ्रू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2003. ठीक है. बिकॉज इट वॉज बीइंग फ्रिक्वेंटली अब्यूज्ड. तो लोग इसको बहुत आसानी से स्प्लिट करा करा के बार बार निकल रहे थे एंड देन दे वुड नॉट बी इवन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ लेजिस्लेचर, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोविजन था. तो बिकॉज ऑफ द मिसयूज लेटर इट वॉज रिमूव्ड. ओके. अब ये क्या है कि मर्जर इज़ द ओनली कंडीशन दैट इज़ नाउ लेफ्ट. इवन दो येस इट इज़ एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कंडीशन, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको भी यूज़ अप कर रहे हैं. बट दैट इज़ समथिंग दैट इज़ एग्जिस्टिंग. Then the author has also talked about a recent case of Subhas Desai versus Principal Secretary, Governor of Maharashtra and others, 2023,
wherein the Supreme Court observes that in the Shiv Sena party case, a split has taken place and the factions have come into existence. एक पार्टी है, वो ब्रेक हो गई, तो दो फैक्शन हो गया, तो स्प्लिट है, ठीक है. लेकिन now that this provision was already omitted earlier, it doesn't make sense, है ना. तो 10th शेड्यूल के केस में तो इसका कोई रेलिवेंस है ही नहीं, because the split in the party will now not save the legislatures from disqualification. They are bound to be disqualified based on what the theory says. So this is what the author has told you कि किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन को प्रिवेंट करने की यहाँ कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग को साइडलाइन करके, ठीक है. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द सेगमेंट. द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट वही सेम चीज़ जो उन्होंने ऊपर डिस्कस किया कि स्पीकर ने क्या जजमेंट लिया है या स्पीकर के क्या मूव हैं जिसमें कि एरर देखने को मिलता है. So the author says that despite of all of these things, despite of a very clear picture, the speaker tries to determine that which faction is the real Shiv Sena. और उन्होंने जो किया है उसमें एरर्स हैं. जब उनको ये डिटरमाइन करना था कि कौन सा जो ग्रुप बटा पार्टी के बाद कौन सा रियल पार्टी है, तो उसमें उन्होंने एरर दिखाए हैं. ही फ्रीक्वेंटली कोट्स व्हाट ही कॉल्स द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू डिटरमाइन दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब यहाँ पे क्या सवाल है? The question as to which faction is the real party cannot be decided by the speaker as the 10th schedule does not require him to decide this. ऑथर का कहना है कि स्पीकर को ये ज़रूर डिसाइड करना होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, दैट इज़ फाइन. लेकिन यहाँ पे द स्पीकर जॉब इज़ नॉट टू डिसाइड दैट विच इज़ द रियल फैक्शन इन द पार्टी, ठीक है. बिकॉज द 10th schedule does not allow that. The 10th or rather 10th schedule does not talk about that power of the speaker, because this question is decided only by the Election Commission of India under the symbols order, ठीक है. Only the question that the speaker is supposed to decide is that जो भी पार्टी से लेजिस्लेचर्स निकले हैं वो उनकी ओरिजिनल पार्टी उनकी ओरिजिनल पार्टी थी कि नहीं थी, एंड वहाँ से वो मेंबर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बेस्ड ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ. सो अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और आ जाता है, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन ऑल ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट. एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ सेज कि जो भी मेंबर की बात हो रही है, दैट मेंबर ऑफ द हाउस मस्ट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है. अगर वो किसी पार्टी से हैं जिन्होंने उसको एज अ कैंडिडेट सेटअप किया था फॉर द इलेक्शन, तो ये चीज़ उसमें ऑलरेडी मेंशन है. सो देयर फॉर द ऑथर इज़ वेरी क्लियरली मेंशनिंग कि अब बहुत क्लियर है ये पिक्चर में कि स्पीकर का ये फंक्शन है ही नहीं टू डिटरमाइन विच फैक्शन इज़ द रियल पार्टी. जो ग्रुप बटा उसमें से रियल कौन है ये आपका काम नहीं है. आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो लोग अलग हुए हैं, जो लेजिस्लेचर्स अलग हुए हैं, वो किस पार्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है. क्योंकि बाकी सब काम जो है यहाँ इलेक्शन कमीशन का है एज पर दी ऑथर. थर्ड हेडिंग टॉक्स अबाउट जुडिशरीज क्लियर इनंसिएशन ऑफ द लॉ, कि स्पीकर ने जो डिक्लेयर किया कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ विप एंड द लेजिस्लेचर पार्टी लीडर बाय द शिंदे ग्रुप इज वैलिड रन्स काउंटर टू द सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग. मतलब यहाँ बेसिकली वो क्या बताना चाह रहे हैं कि स्पीकर ने जो भी चीज़ें डिक्लेयर की हैं रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ विप और अबाउट द लेजिस्लेचर पार्टी लीडर, वो सब, और स्पीकर ने उन सब चीज़ों को वैलिड बता दिया. सो वो सब इज़ अगेंस्ट और काउंटर टू द सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग. अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंड करा, दैट द डिसीजन टू रिकॉग्नाइज मिस्टर शिंदे एज द लीडर एंड भारत गोगावालेज चीफ विप इज़ इलीगल. बेसिकली कुछ डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जो कि उन्होंने साफ साफ बोला था कि नहीं ये तो इलीगल है, ठीक है. एंड कोर्ट ने दूसरे के लिए डिप्यूटी स्पीकर के बारे में बात की थी कि उनका जो डिसीजन था रिकॉग्नाइजिंग अजय चौधरी एज द चीफ विप वो वैलिड है. तो बेसिकली ऑथर इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो स्पीकर ने बोला और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो दो अलग चीज़ें. बेसिकली दिस इज द क्रक्स हियर, ठीक है. Also, it was clear that when the conduct prohibited under the 10th schedule is committed, 10th schedule में अगर कोई चीज़ करने को बोला गया है, but if someone is not doing this, उस बेसिस पर there is only one political party, the original Shiv Sena led by Uddhav Thackeray. And in light of this clear enunciation of law by the Supreme Court, मतलब अगर Supreme Court ने कुछ बहुत clearly law में already बोल दिया है, then according to the author, how could the speaker come to finding that Shinde group is the real party अगर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को रियल बोला है. तो बेसिकली ऑथर का पूरा क्लेम
This entire thing can be summarized just with one line that the speaker is clearly without jurisdiction. कि कोर्ट कुछ और बोल रहा है, स्पीकर कुछ और बोल रहा है. ठीक है. Another thing related to the judgment makes it clear that the Shiv Sena led by Uddhav Thackeray is the original party. Now these are political things. हम political things में जा ही नहीं रहे. हमें तो क्रक्स समझना है जो हमें एक जनरल पर्सपेक्टिव से यूज़ किया जा सके. ठीक है, कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ वही वैलिड विप को इशू कर सकती है और वही सबको मानना है. And also regarding the question that which is the real faction of that party, that is the work of the election commission to decide, and that is not supposed to be decided by the speaker. ठीक है, दिस इज़ वॉट द होल आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट. हमने थोड़ा टाइम लेके इसको डिटेल में इसलिए समझा क्योंकि अभी आई एम गिविंग यू द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ इट, दैट हाउ डू वी फॉलो एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट. सो नाउ लेट अस कम बैक टू आवर स्टेप्स. द फर्स्ट रीडिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड द कोर थीम. Because I had to explain you line by line, it took us time. But when you will read it on your own, just doing this much will not take much time. And once you overall do this, now this highlighting and everything I have done prior because I have to explain you here. But when you will do it, you will see the raw article and you will quickly read. So at least आपको core theme से दो चीज़ें तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, that the article talks about the anti-defection law or the 10th schedule. Even if you don't know what it is for the time being, forget about it. But you will make sense that this is one core thing. The second thing is questioning on the role of the speaker. I hope now you understand core theme identify करना is not tough. Second, अब ऑफकोर्स इसके लिए आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए. सिलेबस मैपिंग आप समझ जाओगे कि GS2 मेंस पेपर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. तो ये दो काम तो तुरंत हो गया. ठीक है, दीज टू स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट रीडिंग इज डन. थर्ड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिकल. सो बेसिकली हमें क्या समझना है, दैट ओके विच पैराग्राफ सेज व्हाट. ठीक है ना, अगर आपने ढंग से ये पढ़ा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी था उसमें क्या था. हियर द न्यूज़ वॉज टोल्ड टू यू कि वॉट इज़ हैपनिंग इन द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर्स केस. ठीक है, कि महाराष्ट्र का स्पीकर केस है. और दूसरा इंट्रोडक्शन उन्होंने थोड़ा सा आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पे दे दिया. then it already is giving you the heading, so that is not making an issue for you. You already now know which paragraph says what, right? That here an attempt is made by the speaker to prevent disqualification of the members. Second, speaker has taken certain move which is erroneous, उसमें कुछ error दिख रहा है author को. और third, कि जुडिशरी ने तो ऑलरेडी लॉ को क्लियरली इनशिएट कर दिया था, बता दिया था, तो स्पीकर हैज़ गॉन अगेंस्ट इट और डिफरेंट फ्रॉम इट. ठीक है, तो नाउ द हेडिंग्स ऑल्सो इज क्लियर. So that structuring part is also done. And of course, if you know now the syllabus and little bit of it, you just highlight the important points. So first reading का काम बहुत आसान है. Coming to the second reading, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप इसको नोट्स फॉर्म है, सी अगर आपको सिर्फ पढ़ के समझ लेना और वहीं पे रुक जाना है, although that doesn't make sense in my opinion, but अगर उतना ही करना है तो इस पे तो आने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन if you properly have to make use of the editorial so that later you can use it in the examination, तो फिर आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने पड़ेंगे. अब आप कैसे भी बनाओ, ऑफलाइन या डिजिटली, बट एल्स यू विल फॉरगेट इट. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव द हेडिंग्स एंड द सब हेडिंग्स. बाय दिस आई डू नॉट मीन वॉट इज गिवन इन द न्यूज़ पेपर. दैट कुड ऑल्सो बी यूज्ड इफ नीडेड. बाय दैट आई मीन based on the syllabus what are the things that you can answer, and that would lead to the brainstorming. Brainstorming of what? Brainstorming of anything which is required based on the syllabus and PYQs, that what additional things could be asked here. ठीक है, और फिर बस उसी का शॉर्ट नोट्स बना लेना है. सो लेट अस सी दैट जब आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस, लाइक हियर यू हैव कम अक्रॉस सर्टेन टर्म्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड ना. ये देखो कि विप क्या होता है, ठीक है, डिफेक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं 10 शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन क्या है, एट्सेट्रा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन फिगर आउट कि जितना भी एंटी डिफेक्शन लॉ से स्टैटिक पोर्शन है, एंड आई शो यू अबाउट इट नाउ, दैट कैन बी ब्रेनस्टॉर्म. 10 शेड्यूल उस और बाकी शेड्यूल्स भी क्या होते हैं, यू कैन रीड कुछ और लेटेस्ट एग्जाम्पल, एंड ऑफकोर्स किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इस पर. नाउ इफ़ यू notice in the first paragraph also you have seen that couple of things were given. They have talked about 2 conditions for defection, है ना, कि voluntarily membership दे दी या फिर vote कर लिया against the whip of the party. So now you should brainstorm and try to find out the answer what exactly is meant by this term defection. एंटी डिफेक्शन लॉ है, मतलब डिफेक्शन के अगेंस्ट लॉ. सो आखिर डिफेक्शन होता क्या है, वेयर इज इट गिवन,
Is it given in the constitution or is it defined in the constitution? Such kind of questions are asked in the prelims. ठीक है, कि कोई टर्म जो है वो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है एट्सेट्रा. ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का एग्जाम्पल है. सेकेंड, हाउ द डिस्क्वालिफिकेशन हैपन अंडर 10 शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन, आप वो समझने की कोशिश कर सकते हो. सो देन यू विल ब्रेनस्टॉर्म दैट ओके, इज देयर एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एंटी डिफेक्शन? If yes, where it is given, what is that criteria? Then here it has been talked about the Supreme Court ruling on the voluntarily giving up of the membership. तो उसका डिटेल्स क्या है कि उसमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं. नेक्स्ट चीज़ जो बताई जाती है यहाँ पर कि इस पूरे पैराग्राफ में कि ओरिजिनली what was the criteria given and later by an amendment act what changes were made. ठीक है, तो कब वो चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए, वो आप पढ़ सकते हो. देन फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट स्पीकर्स रोल वाज इन दिस केस. सो ओवरऑल व्हाट इज़ द रोल और पावर ऑफ स्पीकर विथ रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन. हियर दिस आर्टिकल इज़ अबाउट अ केस स्टडी, स्पेशली महाराष्ट्र केस. बट जब हम स्टैटिक प्रिपेयर करेंगे तो वी विल नॉट ओनली डू इट फ्रॉम वन पर्टिकुलर पार्टीज पर्सपेक्टिव ना, और वन एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव. वी हैव टू डू ऑल द स्टैटिक पॉइंटर्स टू इट. तो वो सारे क्वेश्चन आपने निकाल लिए. तो फिर अब आप कुछ बेसिक पॉइंटर्स पे समझने की कोशिश करोगे जहां आप डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, रोल ऑफ स्पीकर एट्सेट्रा से रिलेटेड सवाल के जवाब ढूंढोगे. नाउ इफ़ आई क्विकली शो यू, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो हाउ डू वी प्रिपेयर अ स्टैटिक टॉपिक? जब आपने करंट अफेयर्स करा, माई एडवाइस वुड बी टू डू द स्टैटिक साइमल्टेनियसली एंड फिनिश इट एट वंस. तो आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन पे जाके आप डिटेल समझने की कोशिश करोगे दैट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जैक्टली टेलिंग यू. 10 शेड्यूल क्या है, कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं, व्हाट आर द प्रोविजंस अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है, सब पढ़ के आप क्रक्स निकालोगे. कौन देखो मर्जर के केस में अप्लाई होगा या नहीं होगा, एग्जेम्पशन क्या है, डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे क्या क्वेश्चन आते हैं, रूल्स क्या हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये इतना ही है. ठीक है, 10 शेड्यूल पे ये 3 पेजेस हैं जो समझने हैं. If you are a beginner, this might look very tough and difficult initially for you. So it's okay. You can go with a static book also. For example, ये लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर दिया हुआ है एंटी डिफेक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन की ही चीज़ों को इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में समराइज करके दे दिया है. तो अगर आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन करना डायरेक्टली थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर. आप सारा पढ़ो, प्रोविजंस क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, एक्सेप्शन कैसे होता है. ठीक है, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, देखो यहीं पे रोल ऑफ द स्पीकर आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा. रूल मेकिंग पावर क्या है, और जो एक्ट आया उसका इवैल्यूएशन क्या है, एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म. देन ये जो एक्ट आया जिसके थ्रू वो स्प्लिट वाला पॉइंटर हटा, ठीक है, वो क्या था, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो. वो प्रोविजंस क्या थे, क्यों हटाए गए, एट्सेट्रा. सो दिस इज़ अ स्मॉलर चैप्टर ऑन एंटी डिफेक्शन. स्टैटिक में यू कैन क्विकली फिनिश इट ऑफ. थोड़ा अगर आप रिसर्च करेंगे और किसी जेन्युइन सोर्स पे जाना चाहते हो तो आई विल ऑल्सो रेकमेंड कि जैसे ये देखो छोटा सा है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वेरी लेंदी आर्टिकल जो कि सीधे ऑफिशियल पार्लियामेंट के थ्रू हमें समझ में आ रही है. एटलीस्ट बेटर दैन एनी अदर रेफरेंस नोट, कोई किसी का लिखा हुआ नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है. देयर यू कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया. ठीक है, ये पूरा समरी क्रक्स है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, याद ही ये सब चीज़ें वैसे भी काम की नहीं है. यू वुड अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑन द इटाइमोलॉजी ऑफ द टर्म डिफेक्शन. इंडिया में कैसे उसका बैकग्राउंड रहा, इंडिया में हिस्ट्री क्या रही उसकी, किस वजह से हमें एंटी डिफेक्शन लॉ बनाना पड़ा. ठीक है, लॉ शुरू से तो नहीं था. इफ़ यू नोटिस दिस केम बाय 52nd अमेंडमेंट 1985 और फिर बाद में उसमें एक चेंज लाया गया. तो इसके पहले व्हाट वाज द केस, दैट हिस्ट्री यू आर सीइंग हियर. ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ क्योंकि ये बिल्स पे बात कर रही है, सो दीज आर नॉट समथिंग दैट यू एक्चुअली वुड नीड टू डू, यू कैन इग्नोर. तो आप सिर्फ इतना पढ़ सकते हो और ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो. ठीक है, रेस्ट इज़ इग्नोरेबल पार्ट. बाकी की प्रोविजंस तो हमने दूसरे जगह पढ़ ही लिया, तो फिर यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा एक्ट हमने पढ़ ही लिया, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, मेंस के लिए अगर कुछ आंसर्स के लिए पॉइंटर्स चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस पॉइंट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स एट्सेट्रा. बस बात ख़त्म हो गई. अब ये बहुत अच्छा चीज़ है कि कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे जुडिशियल रिव्यू ऑफ द स्पीकर डिसीजन पे क्या बोला है. नाउ दीज आर द थिंग्स यू कैन डायरेक्टली कोट इन योर एग्जामिनेशन.
कंक्लूजन हल्का सा पढ़ लिया, ये तो कुछ देखना नहीं है. ओवरऑल दिस विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम इफ़ यू नो much on the subject, because many of the things are repetitive. This is how you use one article. Of course it will seem to be कि अभी तो बहुत टाइम लग रहा है, बट अगर आपको एक टॉपिक, नो इफ़ यू आर डन विद दिस, तो आपका पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ का टॉपिक खत्म हो जाएगा, 10 शेड्यूल का, और लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा भी खत्म हो जाएगा. So just from one editorial, your many of the things would be done. So next time whenever you will find an over a period of time of 1 year or 1.5 year, whenever you will find a news on anti-defection law, the only thing you will have to do is to add on the additional pointers, because सबका static, सबका theory हर बार सेम ही रहेगा. only the case study could differ. आज महाराष्ट्र की बात हो रही है, कल किसी दूसरे स्टेट की हो सकती है. that is it. ठीक है. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक बार एक चीज़ यूज़ करके कितने बड़े तरीके से हम अपना आगे का सारा टाइम बचा सकते हैं. So I hope you liked the video, and if you did, if you have stayed till the end of the video, please do let me know how did you find it, and if you would want to have more such contents, please let me know. I would be more than happy to share that with you. So thank you so much. See you guys in the next one. Bye bye. Take care.